Okay, so guys, in the extra classes, we will be discussing some different topics so that आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप रहे. अगर मैं 3 घंटे एक ही टॉपिक को डिस्कस करूँगा वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा. तो हम क्या करेंगे कि हम एक्स्ट्रा क्लास में डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. मोस्ट लाइकली वो टॉपिक जो मुझे आगे जाके करवाने थे तो वो मैं पहले डिस्कस कर लूँगा. ओके, सो स्टार्टिंग विद द कॉम्प्लेक्स नंबर. Okay, complex number. Basically, it relates to the number system we already did in the first class, or rather, the first two classes. Okay, complex number. It is a combination of a real number and an imaginary number. Complex number is basically the combination of real number and an imaginary number. So the question is, what is a real number? If number square is greater than equal to 0, then x belongs to real number. If we square any number, and the square is positive or 0, then that x is basically representing a real number. What is an imaginary number? So it is the reverse. If some number's square is negative, then x belongs to imaginary number. For example, under root minus 4 is basically an imaginary number because when I square it, I will get a negative number. So if the number square is negative, then the number is known as an imaginary number. So now, do you have any idea what is an imaginary number? If a number squared and gives us a negative answer, then the number itself is an imaginary number. For example, we had under root minus 4 here. It could be under root minus 2 as well, under root minus 3 as well, under root minus 5 as well. So in short, the numbers with negative under root are known as the imaginary numbers. Okay. So for suppose we have plus minus 1, we can get a positive 1 number after squaring it. But when I ask you that is there any number that I can square it and get minus 1? No, there exists no number actually. So, but we can imagine a number. What I can imagine? That under root minus 1. When I square it, I will get a negative 1. So it means under root minus 1 is an imaginary number because it comes from imagination. Under root minus 1 can be written as small I and known as iota. Okay. Is it clear till now? Okay. अंडर रूट में लिखा हुआ था -6, मैंने उसको लिखा 6 और लिखा आयोटा. आयोटा क्यों लिखा है? Because of this minus sign.
क्या ये बात समझ आ गई? इसी तरीके से अगर रूट में -4 लिखा है तो मुझे पता है 4 का रूट आता है +-2, लेकिन आयोटा क्यों लगाया? माइनस की वजह से। क्या ये बात समझ आ गई? क्लियर है जनाब? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, Z is a complex number. The Z was the combination of real number and imaginary number. Okay. Z is a complex number. Z is a combination of real number and imaginary number. Here I can write it as x plus y iota. So Z is representing a complex number, and a complex number can be represented in the form of x plus y iota. That is, x is the real part and y is the imaginary part. We can also write x plus y iota in the form of x comma y. For suppose -3 plus 4 iota, here x is -3 and y is 4. That is, the real part is -3 and the imaginary part is 4. Understood? It can also be written as -3 comma 4. For suppose these are the examples. Yes, O mama. +4. Iota is the representation of the imaginary part. Itself, imaginary part was +4. Iota is merged with 4. It means the actual part was 4, but iota is basically representing it that it is an imaginary part, not the real part. Okay, mama? For suppose these are 3 examples. 2 minus 4 iota can be written as 2 comma minus 4. That is the ordered pair form. This can be written as -5 minus 7 iota. While 3 minus iota can be written as 3 comma minus 1 because 3 is the real part and -1 is the imaginary part. What about addition and subtraction of the complex numbers? Let's leave it. Let us do the questions, okay? And questions I will tell you how to solve the complex numbers.
take out your complex number sheet. Okay. Can everybody see the screen? The ordered pair 0, 1 is denoted by. Here you can see that x is 0 and y is 1. We write x plus y iota. So it should be 0 plus 1 iota, that is iota. The product of a complex number to its conjugate. Basically, it is the property. You have to learn it. What do you have to learn it? That z dot z bar is basically modulus of z square as well as what are these things अभी आप देख लेंगे, परेशान नहीं होइएगा कि मॉडुलस ऑफ z क्या और कॉन्जुगेट क्या, ये भी सब समझ आ जाएगा आपको थोड़ी देर में. ओके, आयोटा की पावर्स देखें बेटा. whenever you get आयोटा की पावर, आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए. आयोटा इज बेसिकली अंडर रूट -1. when you square it you will get -1. is there any problem? क्या आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के? सिमिलरली हम करेंगे आयोटा क्यूब. तो आयोटा क्यूब इज बेसिकली आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर. well iota square is -1, that's why iota cube is basically minus iota. and similarly आयोटा क्यूब को बेटा मैंने ब्रेक कर लिया ना आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में. आयोटा स्क्वायर खुद बराबर था -1 के, तो ये बन गया माइनस आयोटा. बात समझ आ गई है बेटा? सिमिलरली अगर मैं आयोटा पावर 4 करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर. ओके, मैं दोबारा समझा देता हूं बेटा. क्या बात समझ नहीं आई बेटा? देखो बेटा, आयोटा बराबर था अंडर रूट -1 के, ये तो पता है ना. आयोटा बराबर था -1 के, ये बात तो पता है ना बेटा.
ओके, अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। क्या ये बात समझ आ गई? क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना। क्या ये बात समझ आ गई? अब आयोटा क्यूब को सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर में। क्या ये बात समझ आ गई? और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 के बराबर है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? -1। तो मैंने जब आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के बराबर है। जी बेटा मामा बोलिए क्या हुआ? जी बेटा मामा बोलिए क्या हुआ? -1 अंडर रूट इंटू -1। देखिए उसको आप आयोटा कंसिडर करें जस्ट लाइक एक्स। जिस तरह एक्स मल्टीप्लाई होता है -1 से तो -x आता है ना। तो उसको जस्ट लाइक एक वेरिएबल कंसिडर करें आप। अब जनाब आयोटा पावर 4 था तो हमने ब्रेक कर लिया आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर में। तो आयोटा पावर 4 जो है वो बराबर हो गई 1 के। तो जनाब आयोटा पावर -21 है। अब देखो अगर आयोटा पावर 1 के बराबर है तो इसका मतलब है आयोटा पावर 4 के ऊपर अब कोई सी भी पावर है तो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि आयोटा की पावर अगर 4 के टेबल में है तो 1 के बराबर है। क्या ये बात समझ आ गई? तो हम एक काम करते हैं कि आयोटा पावर लिखा होता -21। मैं इसको लिख लेता हूँ -24 इंटू आयोटा क्यूब। जनाब आयोटा पावर -43 था ना, मैंने उसको लिख लिया आयोटा पावर -44 इंटू आयोटा पावर 1। और आयोटा पावर 52 को मैंने एज इट इज रहने दिया। तो जनाब 24 जो है वो 4 के टेबल में आता है, ये बन गया 1। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। 44 भी 1 के टेबल में, आयोटा पावर 1 एज इट इज आएगा आयोटा। आयोटा 52 भी 1 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 1, क्योंकि प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आ गई?
एक दफा दोबारा समझाते हैं शुरू से या यहाँ से। देखो बेटा, आयोटा बराबर होता है √-1 के। ये कहानी तो हो गई पुरानी। अब आयोटा को जस्ट लाइक एक्स डील करना है आपने। अब आपने बार बार नहीं लिखना कि आयोटा जो है वो √-1 है और √-1 है। देखो बेटा, आयोटा पावर 4 1 के बराबर है। क्या ये बात समझ आ गई? लारिब, क्या ये बात समझ आ गई कि आयोटा पावर 4 जो है 1 के बराबर होता है? लारिब नहीं पूछा है ना? लारिब, आर यू देयर? बेटा, आयोटा पावर 4 1 के बराबर होता है। क्या ये बात समझ आ गई थी? ओके। अगर मैं आयोटा पावर 4 के ऊपर पावर n लगा दूं, बेसिकली 1 की कोई सी भी पावर 1 होती है ना। आयोटा 4 अगर 1 के बराबर है, अब मैं इसके ऊपर जितनी भी पावर लगा दूं वो 1 ही रहेगा ना। वो समझ आ रही ला रही बात? तो बेसिकली बात ये हो रही है कि अगर आयोटा पावर 4 1 के बराबर है, तो अगर मैं पावर जितनी भी इस पे दोबारा लगाता रहूं तो 1 की कोई सी पावर तो 1 ही रहेगा ना। अब मेरे पास जो नंबर्स थे वो दिए हुए थे ऐसे, जो कि 4 के टेबल में नहीं थे, लेकिन 52 4 के टेबल में था। तो आयोटा की पावर अगर 4 के टेबल में हो तो बराबर होता है 1 के। तो मैंने 21 को ब्रेक कर लिया -21 + 3 में। यहाँ तक समझ आ गई बात? तो -43 को मैंने ब्रेक कर लिया -44 और +1 में। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, याद रखो, रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड के। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड के। क्या ये बात समझ आ गई है? तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट देखें तो वो 3x है, और राइट साइड पे 5 - 2x है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट देखें तो वो y - 2 है, और राइट साइड पर 3y - 8 है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हो जाएगा 5x = 5 और हो जाएगा x = 1। सिमिलरली ये हो जाएगा -2 + 8 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा जनाब y = 3। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? कोई मसला इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जनाब ये कह रहा है 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। जनाब ये करेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट से बाहर अब ये आएगा माइनस का 4 प्लस का 6 आयोटा प्लस का 9। आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो जनाब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, -12 आयोटा और प्लस 6 आयोटा हो जाएगा जनाब माइनस का 6 आयोटा। क्लियर है बेटा? 6 पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला लग रहा है। ला रहे बेटा, क्या चीज समझ नहीं आई? ला रहे बेटा, क्या चीज समझ नहीं आई? ओके, 6 में राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। तो जनाब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो जनाब ये बन जाएगा 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। और जनाब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -4 इंटू -1। और जनाब ये आ जाएगा 13, विच आई कैन राइट 13 प्लस 0 आयोटा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 13 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, और आई कैन से ऑप्शंस का या रादर ऑप्शन का अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो मुझे मिलना चाहिए 3 प्लस 4 आयोटा। तो ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लें। ऑप्शन ए, जनाब अगर मैं x की जगह पर 2 डालूं और y की जगह पर 1 डालूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा 1 आयोटा। चलो, अब मुझे करना है होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। जनाब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो हो जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा -1। और जनाब मेरे पास आ रहा है 3 प्लस 4 आयोटा, जो कि ऑप्शन सही है। अगर इसी तरीके से मैं ऑप्शन सी को भी देखूं, ऑप्शन सी भी मेरा वेरीफाई करेगा। उसकी क्या वजह है कि जनाब ये है -2 और -1 आयोटा। तो अगर यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, 2 प्लस 1 आयोटा बच जाएगा। और माइनस का स्क्वायर करने से पॉजिटिव ही आता है। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? आप क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं, 8 में कह रहे हैं हमें डिवीजन करनी है। क्या क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर है? ऑप्शन का हमने स्क्वायर किया और आंसर देख लिया, 3 प्लस 4 आयोटा आना चाहिए। जनाब यहाँ पर हमें करनी है डिवीजन। 7 माइनस 3 आयोटा डिवाइड हो रहा है 1 प्लस आयोटा से। जब भी डिवाइड करना हो तो नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। मतलब नीचे वाला अगर प्लस में है इमेजिनरी पार्ट, तो उसका इमेजिनरी पार्ट आप नेगेटिव में ले लें।
उसके बाद जनाब ये 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, और नीचे 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। क्या ये बात समझ आ गई? मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है जनाब? सिंपल, ये हो जाएगा 7 वन जा 7, फिर ये हो जाएगा 7 आयोटा, फिर ये हो जाएगा 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? सर 8 वाला रिपीट कर दें। देखो बेटा, जब भी डिवीजन करनी हो तो हम डिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाले के कॉन्जुगेट से करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे वाला अगर प्लस में है तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा माइनस में, और अगर नीचे वाला माइनस में है तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा प्लस में। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। तो जनाब मैंने उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। कैंसिल तो होगा लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है मैंने, क्योंकि मैंने डिवीजन सॉल्व करनी है। मेथड है ये डिवीजन सॉल्व करने का। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जनाब ये हो गया 7 माइनस 10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। नीचे भी जनाब हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। नीचे वाले कॉन्जुगेट से माइनस प्लस डिपेंड करता है। अगर नीचे वाला प्लस में है तो कॉन्जुगेट माइनस में होगा, अगर नीचे वाला माइनस में है तो कॉन्जुगेट प्लस में होगा। जनाब 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 माइनस 10 आयोटा, नीचे आ जाएगा 2, और अगर तुम 2 से कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा। क्लियर है जनाब? क्लियर है जनाब? 9 सेम तरीके से होगा, खुद करेंगे। वो कह रहा है एडिंग x प्लस वाई आयोटा इन, वो कह रहे हैं x प्लस वाई आयोटा को ऐड करो 6 प्लस 2 आयोटा में। यील्ड नो नंबर मतलब 0, तो इसका मतलब है x प्लस वाई आयोटा बराबर है -6 माइनस 2 आयोटा के। तो रियल रियल के बराबर होगा, तो x बराबर हो जाएगा जनाब -6 के, और जनाब y बराबर हो जाएगा -2 के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि जनाब फॉर सपोज z बराबर है हमारे पास √3 प्लस √2 आयोटा के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है दे आर आस्किंग अबाउट 1/z। तो 1/z का मतलब है इसको आप रेसिप्रोकल करके लिख लें। तो जनाब क्योंकि ये डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन में हम करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ भी हमने वही किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जनाब ऊपर तो आ जाएगा सिंपल एज इट इज, नीचे क्या बन जाएगा? जी बेटा मामा बोलिए। नीचे बन जाएगा जनाब √3 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर। हाँ बेटा बोले मामा, क्या कह रही हैं? मैं नहीं समझा आपकी बात। ऑर्डर्ड फॉर्म x, y, इसमें y के साथ खुद आयोटा लगाना है। हाँ बिल्कुल। ऊपर ये एज इट इज आया, नीचे आया जनाब 3 - 2, और आयोटा स्क्वायर हो गया जनाब -1।
तो जनाब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नीचे आ जाएगा 3 + 2 5। क्या ये बात क्लियर है सबको? लेकिन इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमें वापस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जनाब कॉमा की फॉर्म में। x प्लस वाई आउटा का उसमें भी खुद और x माइनस वाई आउटा, हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी वैल्यू होगी। तो जनाब ये आ रहा है √3/5 और ये आ रहा है जनाब -√2/5। क्लियर है जनाब? कोई मसला है इसमें? ओके। एडिटिव इनवर्स क्या होता है जनाब? या मुझे 2 मिनट दे, मैं आ रहा हूँ। कचरे वाला है, कचरा देकर आ रहा हूँ। 2 मिनट दे, आ रहा हूँ। अच्छा जी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है चेंजिंग द साइन ऑफ बोथ द नंबर्स, द रियल एज वेल एज इमेजिनरी। तो 0 0 का एडिटिव इनवर्स 0 0 ही आएगा ना भाई। जनाब मॉडुलस, मॉडुलस बाद में बताता हूँ, पहले ये समझें कि सॉल्व कैसे होगा। आयोटा क्यूब बराबर है जनाब माइनस आयोटा के, राइट? वाई नॉट डी? एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड शहजाद साहब। जीरो का साइन चेंज करें तो जीरो ही आएगा। एडिटिव होता क्या है? देखो बेटा, एडिटिव इनवर्स ही होता है कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अगर उसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसका रियल पार्ट भी साइन चेंज कर दें और इमेजिनरी पार्ट भी साइन चेंज कर दें। फॉर सपोज अगर ये होता 2 + 3 आयोटा, तो ये हो जाता -2 -3 आयोटा। समझ आ गई ये बात?
जनाब मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है ऐसे लिखते हैं मॉडुलस को। जनाब मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। जनाब अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो इसमें आप x की जगह पर लिख दें 1 और y की जगह पर लिख दें आप -1। क्या ये बात समझ आ गई है? आपके पास आंसर आ जाएगा मॉड जेड का मॉडुलस का √2। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये बात समझ आ गई है? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होता, तब होता है जब डायरेक्ट हो, बीच में प्लस माइनस हो तो नहीं होता। अब जनाब इसकी बात करते हैं व्हाट्स मॉडुलस, या डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा जी हाँ, क्योंकि आपके काम का नहीं है। फिलहाल इतना समझ लें कि मॉडुलस बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जस्ट लाइक यू डिड इन वेक्टर्स, इफ यू डिड इन फिजिक्स, if you ever did physics in your whole life. If you didn't do physics in your whole life, so I cannot explain you modulus in 5 minutes. I have to explain it you in half an hour. So just remember this formula for the modulus under root x square plus y square. Okay, Jia? Jia, is that fine? Thank you. Okay, talking about this modulus. So this should be the root 3 square plus 1 square. While for the next one, it should be 4 square plus 1 square. So after multiplying it and solving it, the final answer should be under root 170. Okay. Okay, leave this question. Question number 15. By mistake आपके पास छोड़ दिया मैंने, ये ई कैट के लिए है, आपके लिए नहीं है। 15 छोड़ दें। 16 you can do it by yourself, 17 you can do it by yourself, 18 में हमसे होल क्यूब मांग रहे हैं, तो आई कैन राइट कि भाई 1 माइनस आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर लें 1 माइनस आयोटा के होल स्क्वायर से, तो इट्स द सेम because you can't remember the cube formula. Okay, so this is 1 minus iota, this becomes 1 minus 2 iota. Show 14 please. Okay, okay, fine. I have used the same formula. इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पहले, बिल्कुल कर सकते हैं, काम लंबा हो जाएगा। 16 और 17 के आंसर्स बता दें यार।
अभी बता देता हूँ। तो इट शुड बी z इज इक्वल्स टू, हमारे पास फाइनल है, बनेगा जनाब -9/, प्लस बताना है मुझे आपको, सॉरी, वेट अ सेकंड। √2/5, √10/5, okay. Or you're talking about the 17, sorry. So it should be both C and D. It's a mistake. Okay, C और D दोनों आंसर है यहाँ पर। जनाब वापस आते हैं अपने सवाल पे। ये था हमारे पास जनाब, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर होता है -1, कैंसिल हो जाएगा। सी हो जाएगा -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो हो जाएगा -2 आयोटा। ओके, इज दैट फाइन? ओके, वो यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, ये हो जाएगा p प्लस 5p आयोटा -2q इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आयोटा। तो रियल पार्ट है हमारे पास p -2q, इसको इक्वेट करेंगे हम 3 से, और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 5p, उसको इक्वेट करेंगे हम 7 से। तो ये हो जाएगा, पहले हम निकालेंगे p का आंसर जो कि आएगा 7/5, और ये आंसर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 -2q इज इक्वल टू 3, हो जाएगा 7/5 -3 इज इक्वल टू 2q। तो जनाब ये आ जाएगा -8/5 इज इक्वल टू 2q, और q हमारे पास आ जाएगा -4/5। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Is there any problem? Okay. Moving on to question number 20. वो कह रहे हैं कि Z1 एक ऐसा नंबर है कि जब मैं उसको Z से मल्टीप्लाई करूं तो 1 है, तो ऑब्वियसली Z1 जो है 1/Z के बराबर है। That can be written as 1/A plus B आयोटा। अभी इस तरह का सवाल मैंने आपको करवाया था, तो
हमारे पास जो Z1 है वो कैसे आएगा सर? इट इज़ इजी टॉपिक एज स्टडीड इन ए लेवल मैथमेटिक्स। जी बिल्कुल, उससे कहीं ज़्यादा इजी है ये, लेकिन उन बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जिन्होंने ए लेवल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ए माइनस बी आयोटा से, ए माइनस बी आयोटा से। तो जनाब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जनाब ए माइनस बी आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा Z1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि वन जेड जेड, यहाँ देखें Z इंटू Z1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, तो Z मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 21 में मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, ये खुद कर सकते हैं आप। जनाब हमारे पास लिखा हुआ है -1 प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर, so that is -4, ऑप्शन सी। जनाब 3 प्लस सर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आएगा ना? ना शाहजार, क्या हो गया भाई, वो ए लेवल मैथमेटिक्स है, बहुत बेसिक वाला आता है इधर, और शायद ये बेसिक वाला भी ना आए। 3 प्लस 4 आटा का होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा जी, 1/3 प्लस 4 आयोटा करेंगे, ऑप्शन ए आएगा जी। यार इट्स रियली इजी क्वेश्चन बेटा, इसको आप ऐसे लिख लो ना, इसको आप लिख लो -1 प्लस √3 आयोटा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लो आप, ठीक है, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, हो जाएगा सॉल्व। ओके जी हाँ। सर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई की जो अपनी वैल्यूज है वो खुद रियल नंबर की फॉर्म में है, वो मजीद आयोटा की फॉर्म में नहीं है, ताकि आप ये ना समझे कि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन शॉर्ट ये आपके मतलब का नहीं है। सही है। अच्छा जी, मॉडुलस मांग रहे हैं, मॉडुलस निकालना आता है हमारे बच्चों को। मॉडुलस ऑफ जेड बराबर आएगा जनाब, ये आएगा जनाब √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। गॉट इट? अब नीचे भी ऐसे ही होगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 1। इमेजिनरी पार्ट मांग रहे हैं, इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। जिया क्लियर हो गया था बेटा क्वेश्चन नंबर 21? अच्छा समझा दूँ? सर मॉड निकालते हुए आयोटा इंक्लूड नहीं होगा? नहीं, इंक्लूड नहीं होता। हो जाएगा जनाब ए स्क्वायर प्लस 2 √ आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जनाब यहाँ पर मैंने खोल दिया है, और यहाँ पर प्लस के बाद यही चीज़ मेरे पास आ जाएगी
यहाँ प्लस आ जाएगा, उसके बाद आयोटा स्क्वायर को पुट कर दूंगा मैं -1, यहाँ पर आ जाएगा जनाब -3, तो जनाब ये तो आयोटा स्क्वायर इज -1 राइट, तो आपने मॉडुलस में -1 कैसे लिया? आयोटा नहीं लिखते मॉडुलस में, मॉडुलस होता है √x² + y²। तो जनाब ये हो जाएगा 2 - 2√3 आयोटा, और जनाब ये हो जाएगा 2 + 2√3 आयोटा, तो जनाब हमारा फाइनल आंसर आएगा 4। एक मिनट, -4। ठीक है जिया, समझ आ गया बेटा, आप सॉल्व कर दिया मैंने आपके लिए। जिया बेटा क्लियर है क्वेश्चन? जिया बेटा क्वेश्चन क्लियर है? जना यहाँ पर x³ + y³ करना है, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा अलजेब्रिक फार्मूला कि जनाब x³ + y³ बराबर होता है x + y होल क्यूब -3xy × x + y। इसको यूज़ करेंगे हम। सर क्वेश्चन 23 दिखा दें, ये रहा 23। ओके लारे, अब इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें तो आंसर में चेक करवा देता हूँ आपको। जनाब 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा, जनाब ये आंसर आएगा -92। ओके, यहाँ पर हमसे a² + b² मांगा है, तो अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस लगा दूं, b आयोटा, राइट साइड पे भी मॉडुलस लगाना पड़ेगा, प्लस आयोटा 2 - 3 आयोटा। ट्वेंटी फाइव सॉल्व कर दें। सर मॉडुलस इज √x² + y²। यस इट इज़। देखो बेटा ओ मामा, ये अलग से आप पूछ लेना मुझसे, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अभी टाइम कम है बेटा, मुझे सारे करवाने हैं ये। तो जनाब ये हो जाएगा √4 + 1, और ये हो जाएगा √4 + 9, और लेफ्ट साइड पर आएगा अंडर रूट। ओके मामा, इज दैट फाइन? बाद में करवा दूं मैं आपको। अच्छा चलो देख लो यार, x की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा, और y की वैल्यू दी हुई है 2 - 3 आयोटा। इसमें पुट कर दो और कुछ भी नहीं करना, ठीक है।
जनाब अगर यहाँ मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ तो आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5/13। 37 आप छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है। 28 में पुट n is equal to 0 एंड वेरीफाई। मॉडुलस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, और इसका मॉडुलस लेफ्ट हैंड साइड का आता अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसलिए मुझे पता था कि मुझे मॉडुलस लगाना है। जब आप n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे, वो कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन बी इज फॉल्स। 29 is really easy, it's option B। 30 में हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई आयोटा निकालने के लिए जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और डिवीजन आपको आती है, डिवीजन करना सिखा दी है मैंने आपको। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। अब इसका आंसर आएगा 1 प्लस 2 आयोटा। 31 में मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 29 बी कैसे? यार देखो वो कह रहा है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसको आप -1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा -1, 0। 28 का आंसर क्या है? 28 का आंसर ऑप्शन बी है, लिखा है मैंने। ये भेज दूंगा ना फाइल आप लोगों को, परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा, मैं था क्वेश्चन नंबर 31 पे। वो कह रहा है आयोटा -2 अपॉन 5 आयोटा। हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी है इसका आंसर, खुद करेंगे आप। यार 0,1 नहीं है भाई। 28 की लॉजिक क्या है? 28 की लॉजिक ये है कि n की जगह पर कोई भी नंबर आप पुट कर दें। वो कह रहे हैं n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो n की जगह कुछ भी नंबर पुट कर दो और देखो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैंने n की जगह 0 रख दिया, आप n की जगह 1 रख दें और चेक कर लें लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ रही नहीं आ रही। 29 में बेटा ये आयोटा स्क्वायर लिखा है मामा। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। -1 को मैंने लिख लिया -1 प्लस 0 आयोटा, और x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। समझ आ गई बात? सर ऑर्डर में 0,1 वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। पूछ वो आयोटा स्क्वायर कर रहे हैं, बता वो आपको आयोटा कर रहे हैं। कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको ताकि आप गलत आंसर पर टिक कर दें। आयोटा अलग चीज़ है, आयोटा स्क्वायर अलग चीज़ है, सेम थोड़ी हो सकता है। आयोटा होता है जिसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। आयोटा स्क्वायर तो भाई -1 के बराबर है, और आयोटा अंडर रूट -1 के बराबर है, तो अलग चीज़ें हैं बेटाओ मामा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, पूछें बेटा क्या चीज़ समझ नहीं आई? पूछ भी चुके हैं बेटा। 0 आयोटा कैसे आया? खुद लेकर आए हो ना x और y की वैल्यू के लिए बेटा। अच्छा छोड़ो उसको।
बताओ यहाँ पर x कितना है, -1, y कितना है 0 ना, तो y की वैल्यू तो कुछ लिखनी पड़ेगी ना, तो 0 आयोटा लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि y की वैल्यू 0 है। सिर्फ -1 लिखा होगा तो ये तो सिर्फ रियल है ना बेटा, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं इसके साथ, तो जब इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो वो 0 के बराबर है। समझ आ गई बात? सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, जनाब यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि x प्लस वाई आयोटा निकालने के लिए जो -4 + 7 आयोटा था, जो 2 + 4 आयोटा लेफ्ट साइड पे हो रहा था मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। डिवीजन आप लोगों को आती है, सिखा चुका हूँ मैं। जनाब इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन ए। मुझे ये आइडिया नहीं था कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रियल नंबर बन जाए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, इट हैपेंस इन लाइफ। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो जनाब इसको हम लिखेंगे 1 + 2 आयोटा -3, लिखेंगे 1 - 2 आयोटा -3, और इसको हम लिख लेंगे -2 + 2 आयोटा, और इसको हम लिख लेंगे -2 आयोटा। मॉडुलस निकालना आता है मेरे बच्चों को? अच्छा, सॉल्व करना है, सॉल्व तो कर लेंगे, आप डिवीजन लगा देंगे बेटा, डिवीजन सिखा दी है मैंने। इसका फाइनल आंसर आएगा जनाब ऑप्शन ए। ओके जनाब, इसको देखते हैं। डिवीजन आप लोगों को आती है, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। जनाब इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। जनाब इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर आएगा जनाब ऑप्शन सी। सर आप इनको सॉल्व करके भेज दीजिएगा प्लीज। नहीं बेटा, देखो बेटा, अगर मैं आपको सारे सवाल सॉल्व करके दे दूंगा तो आपने क्या किया? मैंने आपको तकरीबन आधे से ज़्यादा सवाल सॉल्व करवाए हैं, अगर ये भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा तो मुझे बताएं आपने क्या किया? मैं इनके आंसर्स भेज रहा हूँ, तो अगर आपसे नहीं सॉल्व होंगे तो बेटा मैं मौजूद हूँ ना। आप जब मुझसे सवाल पूछते हैं, ठीक है लेट जवाब देता हूँ, लेकिन हर हर सवाल का जवाब देता हूँ ना मैं। तो आप मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बात समझ आ रही है? अच्छा ठीक है बेटा, मैं टाइम निकाल कर इंशाल्लाह आप लोगों को ये सॉल्व करके दे दूंगा, लेकिन वादा नहीं करता क्योंकि ये आपको सॉल्व करने हैं। वॉइस मैसेज पर क्लियर नहीं होता। ओके, आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, डोंट वरी। ओके, आई विल डू इट फॉर यू, डोंट वरी।
बेहतर है मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन सा वाला नहीं हो रहा, फिर वो आपको सॉल्व करके भेज दूंगा मैं अब, ठीक है? प्लीज एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा मैंने आपको ये समझाया था, जो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक सवाल करवाया था मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये देखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। 1/z को हम लिखते हैं 1/a+b आयोटा की फॉर्म में, और 1/a+b आयोटा को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। बात समझ आ गई जिया? तो अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकती हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। इज दैट क्लियर? सर एक दफ़ा एडिटिव भी, एडिटिव का मतलब होता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन चेंज कर दो। a+b आयोटा तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, हाँ बिल्कुल मेंशन्ड है। अब इसका मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको आप x को a कंसिडर कर लें, y को b कंसिडर कर लें। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको z इनवर्स का फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए भाई 1/z के लिए आप फॉर्मूला याद करना चाहें तो फॉर्मूला याद कर लें। ये हो जाएगा जनाब ऑलवेज x माइनस वाई आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके ओ मामा, अब इसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू डाल दें। ठीक है, बात समझ आ गई है? जिस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन लगेगी वो आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। ओके, समझ आया भाई? कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हुआ बेटा? बच्चों आया कुछ समझ में या सब सर के ऊपर से चला गया? ओके अच्छा, गालिबन जीपी की वीडियो सबने देख ली होगी, तो जीपी आई विल नॉट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक जीपी हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय यू। लॉग्स हम कर चुके हैं, ठीक है? तो अगली क्लास में हम कुछ और मज़ीद चीज़ें देखते हैं, ठीक है? आखिरी सवाल जी बताओ मामा, पूछें। हरी अप मामा, हरी अप। पेपर में कुछ तो रेशो हो गए कि क्या ज़्यादा होता है यार, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है अभी तो। दे कैन गिव यू एनीथिंग, बस दिमाग खोल के रखिएगा। वर्ड प्रॉब्लम बहुत देते हैं, सवालात में वर्ड प्रॉब्लम बहुत देते हैं, ये पता है, ठीक है? ओके चलो, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं भाई दोबारा 12:30 बजे। उस्मान बाद में बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, ओके?